Good morning, ma'am. Good morning, Ishika. Good morning, ma'am. Good morning, Kavyansh. Okay, all the flowcharts are over. The flowcharts Yes, for this chapter is over or not? Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Ajit. Good morning, beta. Fine. Tell me, I think history, both the chapters we have completed class, right? Yes, sir. Right. Civics, till political parties, we have completed the chapters. Yes, ma'am. Then geography, manufacturing industries, chapter 1, chapter 4, agriculture, chapter 5, minerals and power resources, and then chapter 6, manufacturing industries. We have completed, right? Yes, ma'am. So shall we start with the last chapter of geography? Lifelines of national economy. Yes, sir. Huh? Shall we, class? Yes, ma'am. Anything that you have not understood in these chapters that we have completed? No, ma'am. All doubts, everything is clear? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. बताओ बेटा, कोई आपको डाउट्स जो अभी तक चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनमें? नवजोत, Ajit, others, Mahin is there? No. Zainab? No, ma'am. Zainab is also not there. Zainab, are you there? Yes, ma'am. Any doubts, beta? Morning, ma'am. No doubts? Ma'am, Ji? Yes, Ajit? ma'am, in history I am having doubt, ma'am. हाँ बताओ, which chapter? Ma'am, only in first chapter, ma'am, between in one topic. Which topic? Which topic, Ajit? बेटा बताओ Ajit, which topic? You can write in the chat box always. If you're not able to message, if you're not able to tell. Good morning, ma'am.
Good morning, Kartikeya. Okay, class, we are going to start with a new chapter of geography, the lifelines of national economy. Right? This chapter, lifelines of national economy, this chapter covers a huge part of the country's economy. There are so many topics that we have to cover. We'll be basically discussing about the transport and communication in this chapter, right? Right, class? Yes, ma'am. If we Yes, talk ma'am. about, okay, fine. Yes. Can we have the cameras on, children? Can I open up for 5 minutes? Ji, others, Ayush, Ishika, Zainab, Niharika, Bhumika. Bhumika, Niharika, are you there? Niharika, can you hear me? Yes, ma'am. Open your mic, open your camera, beta. Yes, ma'am. Going. Chaliye. I'm sharing the screen with you all. Can you see the screen? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Can you see now? Yes, ma'am. Okay. Yes. ma'am. किसी भी इकोनॉमी की लाइफलाइंस किसको कहा जाता है? डू यू नो? काव्यांश? What is considered as the lifeline of a national economy? Any country? Yes, ma'am. Huh? Kavyansh? Kavyansh, what did you say? Please tell. Ma'am, income. नहीं, income कैसे आएगी? How do the country gets the income? What is the source of that income? It can be agriculture. It can be Employment. agriculture, it can Ma'am, be tax. taxes, okay, but then how this employment, this agriculture is going to work as the lifeline of the national economy? Ma'am, exchange of money. Okay,
Exchange of money can take place only when we have something to exchange for, right? Right? Isn't it? Yes, ma'am. Yes. Right? Fine. See, lifelines, just now I asked you about the transport. I told you that in this chapter, we'll be reading about the transport and communication. See, for any country, the lifelines of any national economy is considered the transport system of that country and the communication system. See, if in any country, this transport and communication is developed, then only we can say that that country will have a great success in having a good economic condition. Why? Do you know? Why and how? Can you tell? It's a general question. बेटा आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है. कार्तिकेय? मैम वर्ड में रिपीट कर दीजिएगा. बेटा हम ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी नेशनल इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो कैसे प्ले करते हैं, क्या क्या कारण है, क्यों इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? अगर ये नहीं होंगे तो भी तो काम चली जाएगा यार, नहीं चल पाएगा. यू हैव टू आंसर. मैम नहीं चल पाएगा. क्यों नहीं चल पाएगा कार्तिकेय, बताओ. क्योंकि मैम सारी मैम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मैम अलग अलग जगह पे है मैम, सारी एक ही जगह पे नहीं है मैम. मैम वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दैम. वी नीड टू गेट देम ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है दैट विल आल्सो नॉट वर्क. राइट राइट माहीन, जैसे फॉर एग्जांपल काव्यांश हुए, आर्यन हुए, लवलेश हुए, कार्तिकेय हुए, निहारिका हुई, इन सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं और ये सारे लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं. अगर आयुष को कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए जो निहारिका के रीजन में अवेलेबल है, तो क्या आपको लगता है कि बिना कम्युनिकेशन के निहारिका जो है आयुष को वो रिसोर्स दे देगी? नहीं देगी ना. नो मैम. क्या गारंटी है कि भाई जब वो आयुष के पास सामान भेजेगी तो आयुष विल बी प्रोवाइडिंग द मनी, राइट? तो अनलेस एंड अंटिल आयुष इज एबल टू कम्युनिकेट दिस टू निहारिका दैट आई वांट अ particular percentage of a particular resource that she has. Say for example, she has ample of iron resources and coal resources, right? तो अगर कोल और आयरन की अवेलेबिलिटी आयुष को चाहिए होगी अपने किसी भी काम के लिए, तो पहले उसको ये निहारिका को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. और वो अगर निहारिका के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा निहारिका के रीजन में, तो चाहे आयुष कम्युनिकेट उसको कर दे, बट शी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड him those resources within a specified period of time. Is this clear? Yes ma'am. Right? Yes. Aryan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Now see, if I say that, say for example, the transport and communication of, say for example, of a particular area, of a particular region is not so developed. तो क्या वो रीजन इकोनॉमिकली बेटर होगा? नो मैम. क्या वो एरिया इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएगा? नो मैम. No, ma'am. नहीं कर पाएगा ना. क्यों नहीं कर पाएगा निहारिका? क्योंकि अगर वहां का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, उस रीजन का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा, तो वो रीजन जो है एक डेवलप्ड रीजन नहीं कहलाएगा और ना ही वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएगा. उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि जब लोगों की आवाजाही नहीं होगी, जब कोई भी चीज वहां पे आ नहीं पाएगी, वहां से जा नहीं पाएगी, तो किस तरीके से एक्सचेंज विल टेक प्लेस? भाई किसी भी जगह का ग्रोथ जो है, वहां पे जो भी एक्सचेंज होता है, जो भी चेंजेस, जो भी कम्युनिकेशन या जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके थ्रू ही तो पता चलता है हमको, राइट? Yes, ma'am. पर अगर यही चीजें, अगर ये ट्रांसपोर्ट और ये कम्युनिकेशन ही डेवलप नहीं होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, तो क्या वो एरिया हम डेवलप, उसको हम डेवलप्ड एरिया कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते. भाई सीधी सी बात है, आप इमेजिन करो लाइफ विदाउट मोबाइल्स, लाइफ विदाउट बाइक्स और विदाउट मोटर कार्स और विदाउट एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आप जिस जगह पे है वहीं पे आप कन्फाइंड है, आप ना तो किसी से बात कर पाते हैं अदर देन योर प्लेसेस वेयर पीपल आर लिविंग. अगर आप चाहो कि, अगर आर्यन चाहे, सपोज फॉर एग्जांपल आर्यन रहते हैं फरीदपुर में, ठीक है,
और कार्तिक आर्यन रहते हैं फरीदपुर में और कार्तिकेय रहते हैं आपका बरेली में, ठीक है। तो अगर आर्यन Yes. अगर फरीदपुर और बरेली में कोई कम्युनिकेशन मोड नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से चीजें कैसे एक्सचेंज करेंगे? या से फॉर एग्जांपल दीज बोथ आर बिजनेसमैन, ये अपने अपने गुड्स कार्तिकेय के रीजन में आर्यन के द्वारा प्रोड्यूस करा गया, मैन्युफैक्चर करा गया सामान की रिक्वायरमेंट है, और आर्यन के एरिया में कार्तिकेय द्वारा प्रोड्यूस करा गया। पर अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या ये लोग इजीली एक दूसरे के से बात कर पाएंगे गुड्स की एक्सचेंज के लिए? क्या ये अपना सामान एक जगह से No, दूसरी ma'am. तक पहुंचा पाएंगे? बताओ आयुष। नो मैम। नहीं पहुंचा पाएंगे। No. तो जो आर्यन ने जो भी सामान बनाया है या कार्तिकेय ने जो भी चीज मैन्युफैक्चर करी है, वो उसके लिए किसी भी तरीके से वो इकोनॉमिक सोर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। हो सकता है कार्तिकेय ने जो सामान बनाया वो बाहर के लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है बजाय फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन हिज एरिया, ठीक है। तो जब तक किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी को हम तब तक डेवलप नहीं बोलेंगे जब तक उस इकोनॉमी में आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप नहीं है। आप देखो पुराने जमाने में जब तक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ था, पीपल वर कन्फाइंड टू देयर ओन प्लेसेस, कोई आवाजाही नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था मूवमेंट किसी भी तरीके का? No, ma'am. नहीं था ना? No. नहीं था ना? तो ये जो मूवमेंट होता है या जो भी अगर हम लाइफलाइंस की बात करते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि दीज आर द लाइफलाइंस ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. क्या समझ में आया? Yes, ma'am. जी बेटा। बेटा नवजोत, those who can switch on the cameras, please switch on your cameras. निहारिका, भूमिका, चंदानी, इशिका, अब जब हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, व्हेन वी वर इन क्लास 3, 4, 5 में जब हमने पढ़ाई शुरू करी साइंसेस के, सोशल साइंस के बारे में या ईवीएस जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 3. वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है हमारी? लैंड, Ma'am, land, water, air. वाटर एंड एयर। वेरी गुड। तो जब हम अगर हम ये लैंड को देखें तो लैंड में भी फर्दर जो है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3। वो 3 कौन कौन से? आपका रोड वेज, रेलवेज एंड Pipeline. Waterways. आज की डेट में नहीं, वाटरवेज कैसे हो सकते हैं बेटा? आप लैंड Sorry ma'am. Land. पाइपलाइंस, ठीक है। Yes ma'am. Pipelines. पाइपलाइंस ये जो है अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज्यादा पुरानी सिस्टम नहीं है पाइपलाइंस का। पाइपलाइंस जो है ये रिसेंट पास्ट में ही दिस सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, और ये जब ये पाइपलाइंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इससे बहुत सारी चीजें जो है बहुत आसान हो गई, इजी हो गई। फाइन, दिस मच ओके, क्लियर एंड अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. वाटर की बात करते हैं तो हमें पता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। Yes. एक तो आपका इनलैंड वाटरवेज होता है, ठीक है, और एक आपका होता है ओवरसीज। ये इनलैंड वाटरवेज जो है ये विद इन द कंट्री आपका इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, कैनाल्स वगैरह के थ्रू। और ओवरसीज में आपका जो आपका सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं इन गोइंग अब्रॉड इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये जो आप लोगों ने देखा होगा जो हैवी गुड्स होते हैं ना, जो आपके मशीन गुड्स होते हैं, ये कार्स और ये व्हीकल्स के बनाने वाले, ये सारे के सारे कार्गो शिप्स के थ्रू आते हैं, ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है। आर यू अवेयर ऑफ दिस क्लास? Yes, ma'am. Member. Yes ma'am. Yes ma'am. ये स्पेशली साउथ वगैरह में, साउथ में कोची में हुआ
ये यहाँ पे जो है बड़े बड़े शिपमेंट्स आते हैं और शिप्स के थ्रू आते हैं, उन्हीं में सारे के सारे पार्ट्स आते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर इंडिया में असेंबल किया जाता है। ये वाटर वाला ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ, इनलैंड एंड ओवरसीज? यस मैम। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका एयरवेज के थ्रू ही होता है, ठीक है, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. और अगर हम एयरवेज की बात करते हैं तो इंडिया में एयरवेज जो है ये आपका मतलब एयरवेज में हम वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी फ्लाइट्स जो कि पैसेंजर्स को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये जो फ्लाइट्स होती है ये आपकी इंटरनेशनल भी होती हैं और ये आपकी डोमेस्टिक भी होती है कि नहीं होती है? Yes, ma'am. और ये जो आपका एयरवेज है इट कम्स अंडर दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको? मैम एक बार और बता दीजिए मैम, कॉल आ गई। कह रहा है जो एयरवेज है उसको वो जो है एक तरीके से अपने आप में एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक अंडरटेकिंग में आता है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर उसको कंट्रोल करता है। दो हमारे कंट्री में जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसका केवल नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में एयरवेज का, ठीक है। वो अलग बात है कि प्राइवेट जेट्स वगैरह, प्राइवेट प्लेन्स भी हम लोग अपने एयरपोर्ट्स पे चलाते हैं, ठीक है, पर ज्यादातर जो इसका जो एयरवेज जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वर्क करता है। एम आई क्लियर? यस मैम। चलिए, रोडवे, लैंड, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में देयर आर 3 पार्ट्स, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। Land, water and air transport is further categorized into different categories depending upon its usage. अगर हम लैंड की बात करते हैं, रोडवेज हुए, रेलवेज हुए और पाइपलाइंस हुए, ठीक है, इतना क्लियर? Yes, ma'am. अगर हम केवल रोडवेज की बात करते हैं, अगर हम केवल रोडवेज की बात करते हैं तो आप जानते हैं हमारे कंट्री में जो रोडवेज का नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज वी हैव इन आवर कंट्री, जिसमें कि लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, रोड बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, और इजीली जो है इनको बनाया जा सकता है। आप ये देखो, टेढ़े मेढ़े कच्चे सड़कें जो होती हैं, जो आपके अनमेटल्ड रोड्स होती हैं, उनको आराम से हम रोड प्रॉपर मेटल्ड रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं ये मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स क्या होती हैं क्लास? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. सीरियसली? मैम वर्ड से नहीं जानता हूँ मैम, वैसे जान सकते हैं। देखो, मेटल्ड रोड मतलब पक्की सड़क, पक्की। जैसे अगर हम देखें सन सिटी में, Ma'am, which are made of cement, concrete, and etc. और अनमेटल्ड का मतलब हुआ कच्ची सड़क, ठीक है। Yes, ma'am. तो Made कच्ची is सड़क और Yes, पक्की ma'am, सड़क को मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स कहा जाता है, ठीक है। गांव देहात में आपने देखा होगा कि जो रोड्स होती हैं दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर नॉट इन वेरी गुड कंडीशंस, राइट, वो क्योंकि अनमेटल्ड होती है। yes, वो अलग बात है। आज की डेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो चलाई गई है, जिसके तहत गाँव में भी जो रिमोट एरियाज हैं उनमें भी जो है रोड्स को पक्का किया गया है। ये इंश्योर किया गया है कि वो मेटल रोड्स हो जाएं और उनकी कनेक्टिविटी जो सिटी, जो नियर बाय सिटीज और टाउन्स हैं, उनसे उन रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाए, सो दैट देयर इज ए इजी मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन्स एंड फ्रॉम टाउन्स टू द विलेजेस, ठीक है। आप में से बेटा बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में जॉब करते होंगे, जो कि विलेजेस में जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स होते हैं दे आर इन दी विलेजेस, ठीक है। तो वहां पे जाने के लिए देयर नीड टू बी ए प्रॉपर रूट। तो अगर आप देखो इन कंपैरिजन टू दी अर्ली टाइम्स, आज के टाइम में ये जो विलेज से जो कनेक्टिविटी है इन रोड्स के थ्रू, मेटल रोड्स के थ्रू ही बहुत ज्यादा अच्छे से बन पाई है। ये भुता वगैरह के एरियाज जो हैं, जो आपके स्कूल के पास हैं, भुता हुआ, चुर्रा गांव हुआ, ये सारे के सारे पहले क्या थे, इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं थी टुवर्ड्स दी टाउन्स, टुवर्ड दी सिटी। बट अगर आप आज की डेट में देखो तो ये एरियाज इतने डेवलप हो गए हैं, यहाँ पे रोड्स इतनी प्रॉपर बन गई हैं कि इजी मूवमेंट हो पाता है लोगों का और सामान का। एम आई क्लियर? यस मैम। yes, ma'am. क्या क्लियर हुआ सबको?
राइट? Yes. चलिए ठीक है। अब दूसरा, ये जो जब हम रोडवेज बनाते हैं आपने देखा होगा कि कई बार हमें जो है हल्के से स्लोपी एरियाज पे भी जो है सड़कों को बनाना पड़ता है ना? बनाना पड़ता है ना? Yes, तो ma'am. ये जो ग्रेडियंट्स है इनकी Yes. कटिंग इजी होती है व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स ऑन दी प्लेन्स, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। बट अगर यही आपको हिल्स में करना पड़ जाए तो रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, हिल्स वगैरह पे ट्रांसपोर्ट, ये आपका सॉरी रोडवेज बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि हिल्स होती है, हाइट होती है, स्लोप होते हैं, तो उनको जो है लेवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो अलग बात है, बन जाते हैं। पर जो बहुत ज्यादा अनइवन टेराइन्स है, स्पेशली आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है Okay, ma'am. हमारी कंट्री का, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा जो है अनइवन टेराइन्स है यहाँ पे, और बिल्कुल भी जो है सूटेबल नहीं है फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रोड्स एंड दी रेलवेज। तो आपने देखा होगा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी उन जगहों वहां पे नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि अब थोड़ा बहुत जो है इस पे ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत उसको डेवलप किया जा रहा है, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा अनइवन टराइन है, इतना ज्यादा जो है उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वहां पे जंगल है, पानी है, नाले निकल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है इन जगहों को काट के, इन स्लोप्स को, इन ग्रेडियंट्स को कट करके नॉर्मल प्लेन्स बनाना। राइट? Yes, ma'am. तो आप क्या कर रहे हैं Yes. बेटा? हाँ, Yes, ma'am. आप क्या कर रहे हो? Ma'am, स्विचिंग कुछ भी नहीं। स्विचिंग द स्क्रीन। no, ma'am. फाइन, चलिए इतना हुआ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद अगर हम डोर्स की बात, अगर हम रोडवेज की बात करते हैं तो ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर आप देखो, आप स्कूल आते हो तो बहुत सारे बच्चे वैन्स के साथ, वैन्स में आते हैं। वैन्स क्या करती हैं, आपके घर के इसी दरवाजे के सामने आके खड़ी होती है, पीपी हॉर्न बजाती है और आप लोग बैठते हैं, आ जाते हैं। तो रोडवेज जो है वो आपको डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो कि बाकी कोई भी मोड नहीं कराता है। ना तो वाटर ट्रांसपोर्ट करा पाता है, ना ही आपका एयर ट्रांसपोर्ट करा पाता है, ना ही रेलवेज करा पाता है। ट्रेन आपके घर के आगे आके हॉर्न नहीं देती है कि आ जाओ, बैठ जाओ, मैं आ गई हूँ, नहीं देती है ना हॉर्न। आपको रेलवे No, स्टेशन, ma'am. राइट, आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। राइट? Yes, ma'am. Yes. ओके। अब जो आपकी लोडिंग अनलोडिंग की जो कॉस्ट होती है रोडवेज में, वो कंपैरेटिवली बड़ी लो होती है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। पर अगर आप देखो, चाहे अगर आप अपना सामान एयरवेज के थ्रू कहीं ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, या रेलवेज के थ्रू करवाते हैं, या फिर आप अगर वाटरवेज के थ्रू करवाते हैं, उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है। ठीक है, ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद जो हमारा जो रोडवेज है, वो जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे कंट्री का, वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फीड करता है। इन द सेंस कि अगर आप देखो कि हमारा जो रेलवेज है, रेलवेज की जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसके सामान को का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फ्रॉम द रोड्स ओनली। ठीक है, ठीक है। ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं या जो भी बनता है, इनका इनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो इनका कंस्ट्रक्शन है, वो क्योंकि रोडवेज के थ्रू ही सामान आया जाया करता है, इसी वजह से जो रॉ मटेरियल इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल आपका रोडवेज ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोडवेज है, इट एक्ट्स एज अ फीडर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। राइट? Yes, ma'am. चलिए, Yes. रोडवेज आपको क्लियर हुआ सबको अच्छे से? Yes, ma'am. राइट? Yes, नाउ कमिंग टू द रेलवेज। Yes. अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा रेलवेज है, ये आपका एक प्रिंसिपल मोड है। प्रिंसिपल मोड मतलब मेजर मोड है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्राइट। फ्राइट मतलब
ये सामान और इंसान दोनों को एक साथ जो है एक समय में एक जगह पे रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। आपने देखा होगा ट्रेन, जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं रेलवेज और रोडवेज को, तो हम ये पाते हैं कि जो रोडवेज है उसमें हम एक समय में हजार हजार आदमी को एक का मूवमेंट नहीं कर पाते, एक जो है पैसेंजर बस में कह लो या ट्रक में कह लो। पर एक ट्रेन में, रेलवेज के थ्रू एक ट्रेन में हम एक समय में हजारों यात्रियों को है, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स वी कैन कैरी इन वन टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सामान और इंसान दोनों को एक साथ हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो रेलवेज है आपकी, ये एक तरीके से मल्टीफेरस एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करता है। आपने देखा होगा मालगाड़ियां हैं, डाक भी लेके जाती है, सामान भी लेके जाती है, लोगों को भी लेके जाती है ना। उसके बाद मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी रेलवेज। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में लैंड की बात करते हैं तो रोडवेज के बाद इट इज दी रेलवेज विच कम्स ऑन दी सेकेंड टॉप पार्ट। क्यों रेलवेज सेकेंड टॉप पार्ट है? क्योंकि रेलवेज जो हैं वो कई एक समय में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सामान को इकट्ठा एक साथ एक समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाती है। बाकी आई डोंट थिंक कि अगर हम बात करें एयरवेज की या अगर हम बात करें रोडवेज की, तो अगर आपको 1000 आदमी बिठा के लेके जाने होंगे तो आपको कितनी बसेस करनी पड़ेंगी? एक बस की कैपेसिटी 60 या 70 लोग होते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होते हैं। और अगर हमें हजारों की तादाद में लोगों को जो है मूव करवाना है, जैसे व्हेन आई वाज अ किड हमने देखा था कि भाई रेलवेज के थ्रू हमारे पापा की जो जब ट्रांसफर होती थी या पूरी यूनिट की जब ट्रांसफर होती थी, तो पूरी जो रेजिमेंट है वो एक ही गाड़ी में बैठ के जा रही होती है ट्रेन में। तो ये भी बहुत इजी हो जाता है कि इकट्ठे एक साथ सारे सामान के साथ सब चीजों के साथ एक रेजिमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है ना। ये इजी होता है ना। रोडवेज में ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगर रोडवेज में ऐसा करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए होंगे। पर ट्रेन एक ऐसा मोड है, रेलवेज एक ऐसा मोड है जिसमें कि हम एक समय में इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर अलोंग विद देयर बैग्स एंड बैगेजेस। राइट राइट। यस Okay, मैम। ma'am. Yes, Ma'am. आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से उसमें आपका पेंट्री कार भी चलती है, खाना भी उसी में सर्व हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रेलवेज में अगर हम देखें, अगर हम कंफर्टेबल मोड को देखते हैं तो रेलवेज आर कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल देन दी रोडवेज। राइट। यस मैम। Yes, ma'am. yes, जो आप देखो रेलवेज कब डेवलप हुई थी? अंग्रेजों के टाइम पे। क्यों डेवलप हुई थी? अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल होती थी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, या उनको अगर ट्रूप्स को इकट्ठे जाना होता था है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो कई लोगों को एक साथ रेलवेज के थ्रू ही भेजते थे। तो इट वाज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें भी समझ में आई, इसीलिए हमने ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है रेलवेज की ग्रोथ का, एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है उसको हमने जारी रखा। आपको पता है इंडिया की जो रेलवेज है वो सबसे लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है फॉर एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है रेलवेज का सेक्टर जो है आपका, yes, ma'am. पता है? Yes, ma'am. यस। चलिए, Yes. और फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल करने हैं तो रेलवेज आर द बेस्ट मोड टू ट्रेवल थ्रू। आप देखो जो ड्राइव कर रहा होगा वो एक डिस्टेंस के बाद थक जाएगा, पर रेलवेज में क्या होता है, ड्राइवर चलाते हैं और रेलवेज में जो कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली फॉर द लार्ज डिस्टेंसेस। इट इज वेरी इजी टू ट्रेवल टू लार्ज डिस्टेंसेस थ्रू द रेलवेज rather than going for the roadways. Right class? Yes, ma'am. क्या clear Right, हुआ? ma'am. Yes. Yes. ठीक है, चलिए रेलवेज में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो आई हैव लेफ्ट आउट? नो मैम। ऑल डन? यस मैम। Yes.
चलिए अब हम आते हैं हमारे तीसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। अच्छा, अगर हम आपको बोले कि आप हमें रोडवेज और रेलवेज में एक कंपैरिजन करके बताओ which one you feel is better, तो will you be able to tell, Ishika? Beta, I am giving you one question over here. According to you, which mode of transportation is better? Railways or roadways? Give reasons for your answer. ठीक है? Yes. हाँ, बताओ. Can I? Yes, बेटा रुको, अभी पहले इशिका को बताने दो. इशिका वर्मा, are you there? All those who are there in the Yes, class, ma'am. they need to write this answer in the note, in the geography notebook and send it on the class group right now. सब लोग अपना अपना लिखेंगे. इशिका हमको बस यहाँ पे डिक्टेट करके बताएंगे. इशिका Yes, ma'am. बताओ. Ma'am, railways is Now Ishika, you are not audible. बेटा बताओ. भारतीय खानों में Ma'am, can I? हाँ बताओ कार्तिकेय. Ma'am, roadways is better than ma'am railways because ma'am construction of road is much lower than railway lines, and ma'am we can go to anywhere around us by roadways, but we cannot go at simple distances by railways. हाँ बोलो बोलो बोलो. I'm listening. And ma'am, the price of fuel which is consumed in railways is much higher than that of roadways. Okay. Ma'am, and ma'am, there is no, ma'am, there is very less railway stations. They are very far at the distances. There is a very. Ma'am, the railway stations are at very far distances from each other. ठीक है, तो you feel that roadways are better than railways, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, but what about when you have to, move along with your family, and when you have to carry the luggage, everything, and the distance is quite long? Do you think that roadways will help you in the easy and No, smooth ma'am. movement? No, ma'am. हाँ, ठीक है. देखो, हमें सबके सबके pros and cons पता होने चाहिए. ठीक है, चलिए, rest we will continue in tomorrow's class. Thank you all. Any minute the meeting is going to